Hello class 10th, welcome back. This is the video number 8 of chapter number 1, life process, nutrition and digestion. So in the continuation of topic human digestive system or nutrition in human beings, in this video we will discuss the complete process of digestion and label the diagram. In the last video I will told you about the parts of digestive system, that is alimentary canal and digestive glands. So let's see one by one where is these parts are located. Okay, so I am going to label the diagram of complete human alimentary canal and digestive glands. Just see one by one. Students, suppose this is a diagrammatic representation of human digestive system in which this is the mouth opening. Okay, this is the mouth opening guarded by lips. As you all are knowing, this is the mouth opening guarded by two lips, one pair of lips. If this lips is open, then mouth is open, or if this lips is closed, then mouth is closed. So this is the mouth opening. Inside the mouth opening, this space is known as buccal cavity. Buccal cavity. And inside the buccal cavity, you are knowing that in the upper and lower region there are teeth are found. So we can say that these are the teeth. This is the lower jaw having teeth and this is the upper jaw having teeth. Teeth in jaw. Okay, and here one muscular flat structure, that is tongue. Tongue is also present in the buccal cavity. Then here salivary gland is located. सैलिवरी ग्लैंड भी यहीं पे पाई जाती है. हमारे टंग के नीचे ही एक सैलिवरी ग्लैंड होती है. देयर आर 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, 6 इन नंबर, फाउंड इन द बक्कल कैविटी. तो बक्कल कैविटी में ये सारा स्ट्रक्चर पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या है हम लोग अभी इसको आगे देखेंगे. अभी आप ये लेबलिंग देखिए. जस्ट बक्कल कैविटी के नीचे दिस रीजन इज नोन एज फेरिंक्स. ओके, दिस इज द ओइसोफेगस. And oesophagus is also known as food pipe. Food pipe. ठीक है. Oesophagus opens into the stomach. This is the stomach. Okay, and this stomach goes to the downward and opens into the small intestine. So the first part of small intestine is duodenum. Okay, then this circular structure is known as jejunum, and then finally the part of small intestine which opens to the large intestine, this region is known as ileum, and these three parts collectively known as small intestine. ठीक है, इट इज क्लियर. स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन. द इलियम ओपन्स इनटू अ लार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज सीकम. Cecum. Okay, this cecum goes to the upwards, so that is the colon. This is the ascending colon, transverse colon and descending colon. So we are right here, this is the colon, cecum colon, and this colon goes to the here, and this structure is known as rectum. So we can say that cecum plus colon plus rectum, these three structure collectively known as large intestine. Okay, and after that this rectum is opens into a pore like structure. This structure is known as anus. ठीक है, through which undigested food is removed from the body, right? Okay, so this is the complete labeling of the diagram. एलिमेंट्री कैनाल का ये पूरा डायग्राम है. इसके बाद
आप देख रहे होंगे दिस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। देन दिस स्ट्रक्चर इज लीवर एंड दिस इज द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। बाइल डक्ट से आकर के ये कनेक्ट होता है, दिस इज द बाइल डक्ट, bile duct and this is the gallbladder. So you can see that this is the complete labeling of human digestive system in which the complete digestion occur. Now how the digestion occurs? See the process. When we eat something, we ingest something inside our mouth through the mouth opening. जब भी हम कुछ खाते हैं तो खाना हमारे बक्कल कैविटी में जाता है, बक्कल कैविटी में टीथ पाए जाते हैं, टंग पाए जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, ठीक है। उस सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं और वो फूड को सॉफ्ट करते हैं और डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द माउथ, ठीक है। डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। ये जो टीथ हैं, टीथ का काम है फूड को ब्रेक करना, चबाना, काटना, तोड़ना, ब्रेक करना, चीविंग, बाइटिंग, ये काम होता है टीथ का। छोटे बच्चों के अंदर जब बच्चे 6 महीने के होते हैं तभी उनके अंदर टीथ का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। 6 महीने से लेकर लगभग 6 वर्ष तक उन बच्चों के अंदर मिल्की टीथ पाया जाता है, जिसको दूध के दांत कहते हैं। और 6 वर्ष के बाद वो मिल्की टीथ रिप्लेस हो जाते हैं नेचुरली बाय परमानेंट टीथ, ठीक है। तो परमानेंट टीथ जो होते हैं वो लाइफ टाइम हमारी बॉडी में बने रहते हैं। और ये टीथ 4 तरह के होते हैं बेसिकली, ठीक है। पहला है इंसीजर, फिर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 तरह के टीथ हैं, देयर आर टाइप ऑफ टीथ। इंसीजर जो हमारा आगे का जो टीथ होता है जिससे हम किसी भी फूड पार्टिकल्स को काटने का काम करते हैं, बाइटिंग, ठीक है, इंसीजर। कैनाइन जो होते हैं हमारे में पुअरली डेवलप होते हैं। कैनाइन्स आप देखेंगे कार्निवोर्स एनिमल्स में जैसे लायंस में, टाइगर्स में, वल्फ में देखेंगे तो कैनाइन बहुत ज़्यादा नुकीले वाले जो दांत हैं वो डेवलप होते हैं, तो वो टीयरिंग का काम करते हैं, फूड पार्टिकल्स को टीयर करने में, फाड़ने में, नोचने में, ठीक है, टीयरिंग। प्रीमोलर्स और मोलर्स ये अंदर की तरफ दांत होते हैं जो फूड को चबाने का काम करते हैं। आपने एक एनिमल देखा है हाथी, एलिफेंट। एलिफेंट में जो 2 दांत उसके बाहर की तरफ निकले रहते हैं वो दांत जो होते हैं वो कौन से दांत हैं? इंसीजर दांत होते हैं वो, ठीक है, इंसीजर उसके बाहर निकले रहते हैं। उसके बाद उसके नीचे की तरफ उसके माउथ होता है और वहाँ पे उसके कई सारे टीथ पाए जाते हैं। तो ये टीथ का टाइप है। तो टीथ हमारे माउथ में है और ये फूड को चीव करने में, चबाने में हेल्प करता है। टंग भी यहाँ पे सलाइवा को मिक्स करने में, फूड को हिलाने डुलाने में हेल्प करता है। तो बक्कल कैविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे ये फूड को पूरा कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को तोड़ करके पेस्ट के रूप में बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ से फेरिंक्स के थ्रू होते हुए ये फूड पार्टिकल ओइसोफेगस में पहुँचता है, ठीक है। ओइसोफेगस इज ए फूड पाइप। फूड पाइप इज ए 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है हमारे यहाँ पे फेरिंक्स के नीचे, ये स्टमक तक। अब इस ओइसोफेगस के अंदर आप देखिएगा इस तरह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है बच्चों। जो भी फूड हमारा है ये फूड इंटर किया है यहाँ ओइसोफेगस में, दिस फूड फॉर्म अ फूड बोलस। फूड बोलस, फूड बोलस के रूप में ये नीचे की तरफ इंटर करता है और ये मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जस्ट इस तरह से ये ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ स्टमक में पहुंचती है। तो अगर इस तरह से फूड नीचे की तरफ पहुंच रहा है, इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट? व्हेन फूड इंटर्स इनटू द ओइसोफेगस फ्रॉम बक्कल कैविटी एंड फेरिंक्स, it looks like this type and this food bolus it goes downstairs to the stomach and the wall of the oesophagus is swollen like this। ये फिगर आप बना देंगे और इस तरह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। दिस इज द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इसके बाद फूड हमारा पहुंच गया स्टमक में। स्टमक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ J shaped bag like structure which contains so many digestive enzymes and hydrochloric acid, gastric juices,
फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। जो भी फूड पार्टिकल इस स्टमक में पहुंचा बच्चों, इस फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक की इनर वॉल पे गैस्ट्रिक जूसेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने के साथ ही साथ उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड कंपोनेंट के साथ जो पैथोजन अंदर आ जाते हैं स्टमक में उसको भी किल करने का काम करता है। ठीक है, और ये जे शेप्ड का होता है। आप देखिए यहाँ पे ये इस तरह से घुमा हुआ है ताकि ये फूड पार्टिकल यहाँ पे रुक सके, स्टोर हो सके। ठीक है, अगर ये सीधा स्ट्रेट होता तो फूड पार्टिकल यहाँ पर रुकता नहीं। दैट्स व्हाई दिस स्टमक इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। हमें कभी भी फूड को ईट करना चाहिए ह्यूमन बींग्स में, तो फूड को पहले बक्कल कैविटी में बहुत अच्छे से उसको चबाना चाहिए, चीव करना चाहिए, सलाइवा उसमें मिक्स करना चाहिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके अंदर मिक्स होने चाहिए, तभी वो आसानी से डाइजेस्ट होगा हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है ना, तो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है और ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, एज वेल एज पैथोजन या पैथोजेनिक बैक्टीरिया को भी या फंगस कुछ भी हमारे फूड के साथ अगर आ गया जो डिजीज कॉज कर सकता है उसको भी किल करने का काम करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक की इनर वॉल को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर देता। तो स्टमक की इनर वॉल को इसलिए नहीं डाइजेस्ट करता क्योंकि उसके इनर वॉल पे म्यूकस की ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक, और वो म्यूकस की ग्लैंड से म्यूकस सीक्रेट होता है। दिस म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर वॉल लेयर ऑफ stomach from hydrochloric acid. Okay, hydrochloric acid is a diluted form, and from hydrochloric acid this mucus wall or mucus is protect inside the inner wall from hydrochloric acid. Okay, अब इसके बाद देखिए, this food is now acidic. This acidic food goes to the small intestine from duodenum. So this is about in this video, and I continue this video in the next lecture. Thank you.